Assalamu alaikum, dear viewers. Today I will be discussing relative pronoun. In my last lecture, I had already discussed pronoun and its types, and in that lecture, I had already said that I will be discussing this relative pronoun because this is asked in the examinations, particularly in 10th and 12th. So let's try to understand it in a better sense. So, first of all, you should read these two sentences. I met Akram who has just returned. This is the sentence, and you see one word has been highlighted in red color. I have found the pen which I lost. So, the word which is highlighted. These words who and which are used instead of nouns. अगर आप इस पर गौर करेंगे ये सेंटेंस आप देखिए पहला वाला अगर हम इसको ब्रेक करेंगे इसमें दो क्लाजेज हैं अगर हम इनको अलग अलग करेंगे और इस तरह लिखेंगे आई मेट अकरम फुल स्टॉप अकरम हैज़ जस्ट रिटर्नड तो आई मेट अकरम फुल स्टॉप अकरम हैज़ जस्ट रिटर्नड अकरम हैज़ बीन रिपीटेड सो जब मैंने इन दो क्लाजेस को आपस में इकट्ठा किया तो मैंने लिखा आई मेट अकरम हु हैज़ जस्ट रिटर्नड सो हु इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अकरम इट रेफर्स टू अकरम अगर आप दूसरे सेंटेंस में देखेंगे आई हैव फाउंड द पेन फुल स्टॉप आई लॉस्ट द पेन सो विच जो है इट रेफर्स टू पेन तो इनमें आप क्या देखते हैं इन दोनों सेंटेंसेस में एक चीज़ आप देखते हैं वो ये है कि दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स तो अगर आपको याद आ रहा होगा कि जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था हमने उसके बारे में यही पढ़ा था कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन तो अगर हु और विच नाउन के बदले इस्तेमाल होते हैं सो इन दैट सेंस वी से दीज आर प्रोनाउन्स पहली चीज़ और दूसरी चीज़ ये है दे जॉइन टू स्टेटमेंट्स आप देखिए आई मेट अकरम एक क्लास है अकरम हैज़ जस्ट रिटर्न ये दूसरा क्लास है लेकिन जब हम इनको आपस में मिलाते हैं तो हु या दूसरे में विच का इस्तेमाल करते हैं इट जॉइंस टू स्टेटमेंट्स तो दो स्टेटमेंट्स को कौन ज्वाइन करता है दैट्स कॉल्ड ए कंजक्शन तो इसमें प्रोनाउन की भी खासियत है इसमें कंजक्शन की भी खासियत है तो ऐसे प्रोनाउंस जो दैट प्लेज अ डबल रोल टिवन रोल we call such pronouns as conjunctive pronouns conjunction as well as pronoun या हम इसको कहते हैं relative pronoun why because they refer or relate us to some noun going before them क्योंकि ये जो who है it refers to akram it's mentioned in before it so which refers to pen it's mentioned before it so this noun that has been mentioned earlier or to which this relative pronoun refers that is called antecedent so this antecedent is very important you have to understand it because most often we have to make use of different relative pronouns based on this antecedent this chart will help us to determine where to use who, where to use which, and where to use that, and other relative pronouns. So we use relative pronouns for persons. We use in the subjective place who and that. We use whom and that. We use whose in place of objective case, possessive case, which we have already discussed in the previous lecture. Similarly, we use for animals and things which or that in the objective case and whose in the possessive case. So this this is used with both persons and things in the subjective place. Similarly, this whose is used with both persons and things, animals in the possessive case. So for place we use where, for time we use when, for reason we use why and what, and these are same at objective and possessive cases. You may read out this chart and understand it better. See, there are two sentences. The boy who recited the verses well was awarded. अगर आप इसको इस तरह पढ़ेंगे the boy was awarded फिर भी ये complete sentence है तो ये जो who recited the verses well this is some information about the boy इसी तरह से the teacher called the boy who came at once तो ये एक इस तरह से है तो इसमें क्या फ़र्क है इन दो sentences में क्या फ़र्क है In the first sentence, the highlighted class means highlighted in yellow color. It restricts or limits or defines the boy. लड़के बहुत सारे हैं लेकिन हम किस एक ग्रुप में हम किस लड़के की बात कर रहे हैं Who recited the verses well? तो ये जो क्लास है it restricts or limits or defines the boy कि हम किस लड़के की बात कर रहे हैं
किस लड़के को इनाम दिया गया? Who recited the verses well. So this clause, who recited the verses well, defines the boy. It restricts or limits the meaning of the boy. So ये boy जो है इसमें it's antecedent, और who recited the verses well ये relative clause है, और relative pronoun इसमें इस्तेमाल हुआ है who. तो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी नाउन को, एंटीसीडेंट को डिफाइन करता है, तो ऐसे को हम कहते हैं इट्स ए डिफाइनिंग क्लॉज. एंड डिफाइनिंग क्लॉज इज नॉट सेपरेटेड बाय अ कॉमा. डिफाइनिंग क्लॉज इज नॉट सेपरेटेड बाय अ कॉमा. दिस इज इंपॉर्टेंट. और दूसरे सेंटेंस में क्या फ़र्क है? द टीचर कॉल्ड द बॉय हु केम एट वंस. ये जो है द टीचर कॉल्ड द बॉय, इसमें क्या है? इन द सेकंड सेंटेंस द हाईलाइटेड क्लॉज गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन. ये इट गिव्स, एंड फॉर एग्जांपल द टीचर कॉल्ड द बॉय, अगर मैं इस तरह लिखूँ एंड ही केम एट वंस, तो ये इस लड़के को डिफाइन नहीं करता है. इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन बट इट डज नॉट डिफाइन द एंटीसीडेंट. इट एक्चुअली कंटिन्यूज द मीनिंग. इट कंटिन्यूज द मीनिंग. द टीचर कॉल्ड द बॉय and he came at once. The teacher called the boy and the boy came at once. तो ही जो है इसको जारी रखता है, तसलसल इसका जारी रख, तसलसल टूटने नहीं देता है. It does not define the boy. It gives additional information. So such a clause is called non-defining clause and this is separated by a comma. This is important कि ये मैंने कॉमा की कहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं, कहाँ नहीं, और इसकी मीनिंग भी डिफरेंट है. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी मीनिंग भी डिफरेंट है. अगर आप ये इस पर ज़रा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा. द बॉय हु रिसाइटेड द वर्सेस वेल, यानी ये एक बड़े ग्रुप में एक लड़का. देयर आर लॉट ऑफ बॉयज़, देयर आर लॉट ऑफ बॉयज़ एंड वी आर टॉकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर बॉय. दिस इज रेस्ट्रिक्टिंग द मीनिंग ऑफ द बॉय. और दूसरे सेंटेंस में क्या है? द टीचर कॉल्ड द बॉय, एक ही लड़का है. टीचर कहीं ग्राउंड में बैठा हो तो वहाँ एक लड़का सामने हो. द टीचर कॉल्ड द बॉय हु केम एट वंस. तो यहाँ किसी बड़े ग्रुप में कोई हम सेलेक्ट नहीं करना है. इट्स वी आर नॉट, दिस इज नॉट अ सिलेक्शन अमंग अ ग्रुप बट दिस इज द ओनली चॉइस दैट्स अवेलेबल देयर. सो देयर इज अ डिफरेंस इन मीनिंग एज वेल. तो इसी तरह से कॉमा जो मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया, आप फिर से एक और सेंटेंस में लिख रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप ज़्यादा इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं. माई अंकल हु इज़ अ टीचर. माई अंकल हु इज़ अ टीचर हैज़ गॉन टू इस्लामाबाद. तो कॉमा नहीं डाला हुआ है. माई अंकल हु इज़ अ टीचर. That means I have many uncles, some 3 or 4 or 5, but I am at the moment I am talking about the uncle who is a teacher. One can be a businessman, other can be a doctor, the next can be a farmer, the next can be somebody else, a clerk or somebody else, something else. But I am talking of the uncle who is a teacher. So among many uncles, this is the, it's not separated by comma, so it is the defining clause. It's the defining clause, and defining clause is not, it defines the uncle who is a teacher. It specifies, it limits, it restricts the meanings of the uncle. But in the second sentence, my uncle who is a teacher, so I have the only lone uncle, only one uncle. The only uncle I have, my uncle who is a teacher has gone to Islamabad. It's an additional information about my that very uncle, that he is a teacher. There is a difference in meaning. पहले में है बहुत सारे uncles में choice specify कर रहा है, और दूसरे में ये specify already किया हुआ है, I have only one uncle, but this is an additional information about him that he is a teacher. So this is separated by comma. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना चाहिए. इसी तरह से अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, जो दैट है ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी मैंने जो चार्ट बनाया हुआ था तो उसमें मैंने दिखाया कि ये हम पर्सन के भी लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम एनिमल्स और थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो पहली चीज़ यही है कि दैट इज़ यूज्ड विद पर्सनस एंड थिंग्स एंड एनिमल्स एज वेल. ये चीज़ है. दूसरी है इट्स यूज्ड इन डिफाइनिंग क्लॉजेस. तो ये आपको याद रखना चाहिए. इट्स यूज इन डिफाइनिंग क्लासेस. तो ये डिफाइनिंग क्लास, नॉन डिफाइनिंग क्लास ज़रूरी समझनी है. जैसे हैप्पी इज़ द मैन दैट फाइंड्स विजडम. कौन आदमी खुश है? दैट फाइंड्स विजडम. तो ये दैट फाइंड्स विजडम जो है इट डिफाइंस द मैन. बहुत सारे लोग हैं लेकिन खुश कौन आदमी है? दैट फाइंड्स विजडम. जिसको दानाई मिली तो समझो उसको सब कुछ मिल गया, जिसको जहानत मिल गई तो समझो उसको सब कुछ मिल गया. सो इट डिफाइंस द मैन, इट स्पेसिफाइज द मैन, बिकॉज ऑल मैन आर नॉट हैप्पी. सो इन डिफाइनिंग क्लॉजेस वी यूज दैट. अगर हम चाहें तो हम पर्सन के लिए भी दैट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिफाइनिंग क्लॉजेस में ये ध्यान रखना ज़रूरी है. तो जैसे हमारे पास कुछ अब प्रैक्टिस के लिए, लेट्स प्रैक्टिस इट. लेकिन एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, टू अवॉइड एम्बिगिटी, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए प्लेस रिलेटिव प्रोनाउन. ये जो आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है, वो, हु, विच, दैट,
या कोई या कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन भी कभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, विच एवर, हुसो एवर, हुसो, वट एवर, तो कुछ भी। एज नियर एज पॉसिबल टू इट्स एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट को पहचानना ज़रूरी है, आप जितना मुमकिन हो उतना उसके करीब रखिए। जैसे ए वेट्रेस सर्व्ड अस, a waitress served us, she was very polite and patient, she was very polite and patient, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, she was very polite and patient। तो ये जो पार्ट है, ये जो इसका क्लास है, ये जो इसकी तारीफ है, she was very polite and patient, तो कौन, वेट्रेस। तो इसमें एंटीसीडेंट कौन है, इसमें एंटीसीडेंट वेट्रेस है। तो ये पार्ट जो है डिफाइनिंग क्लास जो है, हम कोशिश करेंगे कि इसको वेट्रेस के बिल्कुल करीब रखेंगे। जैसे द वेट्रेस हु सर्व्ड अस, हाँ, एक बार फिर आप इस सेंटेंस को देखिए, ए वेट्रेस सर्व्ड अस, शी वाज वेरी पोलाइट एंड पेशेंट। तो बहुत सारी वेट्रेस हैं होटल में, लेकिन एक उनमें से है जिसने हमें सर्व किया, इसका तारुफ है। द वेट्रेस हु सर्व्ड अस was very polite and patient। तो ये who served जो है, it defines that, it defines that waitress, it defines that waitress, it defines that waitress। तो इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है, गवर्नमेंट पास्ड लॉ द पब्लिक डिडंट एक्सेप्ट इट। तो पब्लिक ने किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया। सो विच इज़ द एंटीसीडेंट, लॉ। तो कोशिश करेंगे कि जो रिलेटिव क्लास हो वो उसी एंटीसीडेंट के बिल्कुल करीब रहे। जैसे हमने जो सर्विस किसने दी थी, वेट्रेस ने, एंटीसीडेंट इसमें कौन थी, वेट्रेस। तो हमने जो रिलेटिव क्लास जो है बिल्कुल इसके करीब रखा। गवर्नमेंट पास्ड ए लॉ द पब्लिक डिडंट एक्सेप्ट इट, गवर्नमेंट पास्ड ए लॉ, एंटीसीडेंट है लॉ, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक। तो हमने इस रिलेटिव क्लास को एंटीसीडेंट के बिल्कुल करीब रखा। इसी तरह से अकरम कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, अकरम वॉज लैम। तो किसकी बात हो रही है, कौन लैम था, अकरम। अकरम इज एंटीसीडेंट, तो रिलेटिव क्लास को बिल्कुल वहीं रखिए। अकरम हु वॉज लैम कुडंट वॉक प्रॉपरली। तो ये सारे जो क्लासेस इस इन सेंटेंसेस में आए हैं, दे आर डिफाइनिंग क्लासेस एंड देयर इज नो नीड टू पुट ए कॉमा। So thank you for watching this lecture। We will carry on our services, but I hope you watch and subscribe my channel, and I also wish that you watch my lectures deeply and help me and make me aware about the shortcomings that we make, that mistakes that I make during preparing these lectures, so that will help us to modify and do the things better. Thank you very much.